Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes. Shall we start with our session Yes. then? Yes. Okay, Yes, just ma'am. let me know if you can see my screen. If you can see my screen. No, ma'am. Yes, Now, ma'am. Yes, ma'am. yes, you can see. Yes, Okay. ma'am. Good afternoon, everybody. How you guys doing? Everybody fit and fine? Yes. Fine. Yes. Yes. Okay. So today we are going to start with a new session. I think there's somebody who has his mic on. Can you guys just mute your mic, please? Okay, thank you so much. So today we are going to start with a new session और हम सीखने वाले हैं quadratic equations. कल हमने क्या देखा था? Yes. Real Yes, we numbers. had a game. कौन जीता था कल? Team A. ओ टीम ए टीम बी की बहुत बुरी हार हुई थी बट लास्ट वाला क्वेश्चन इजी था यार इसलिए टीम ए जीत गई आई थिंक है ना फेयर प्ले ठीक है सो लेट अस स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन टुडे कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX square BX plus C is equal to 0. ax square plus bx plus c is equals to 0 very good who has told this Dhananjay teacher. very good dhananjay excellent okay can anybody else tell me what is a quadratic equation in any different terms क्या आप थोड़ा बहुत आपके शब्दों में बता सकते हैं आपको क्या समझ में आता है Quadratic equation is an equation in which Yes. the highest power is 2. वेरी गुड हाईएस्ट पावर इज 2 2. आपका नाम Janvi power. जानवी पवार वेरी गुड हाईएस्ट पावर इज 2 okay anybody else wants to say something about quadratic equations Ma'am, they yes ma'am they have same variable throughout. sorry could you repeat please Ma'am, they have same variable throughout. very good same variables throughout आपका नाम Anushri. अनुश्री वेरी गुड अनुश्री ओके फोर्थ पॉइंट किसी और को बताना है कुछ nobody okay I'll give you some examples जिसके हेल्प से आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ओके सो लेट अस टेक 3x स्क्वायर plus 5y plus 6 equals to 0 and another one is 2x square plus 3x plus 7 is equals to 0 क्या आप बता सकते हैं ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं No. no why is it not a quadratic First equation one is not an equation. फर्स्ट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाई बिकॉज देयर इज नॉट ओनली वन वेरिएबल यहाँ पे हमको x एक वेरिएबल दिख रहा है और दूसरा वेरिएबल y दिख रहा है सो वी कैन सी टू वेरिएबल्स देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन इफ x का पावर 2 है लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल्स है देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है but on the other side can you guys tell me is this a quadratic equation or not second one Yes. yes why is it a quadratic equation Yes. Variables are same and the highest power is 2. टू यस जो हमने ये तीन पॉइंट्स लिखे हैं वो तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो रहा है विद दिस इक्वेशन द फर्स्ट वन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो रहा है सेटिस्फाई सेकेंड वन क्या है हाइएस्ट पावर हैज टू बी 2 दैट इज एक्स का स्क्वायर है एक्स का पावर है 2 so even second equation second point is getting satisfied and the third one that is same variables मतलब throughout equation में सिर्फ एक variable है that is x ओके क्या आपको समझ में आ गया व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर Yes, ma'am. yes okay very good now in the next slide what do you want to write this 3 points क्या आपको लिखना है or you can take Yes, screenshot ma'am. प्लीज लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए एंड लेट मी नो वंस यू आर डन ओके
क्या आपका हो गया लिख के? यस मैम। ओके ठीक है। नाउ हमें क्या करना है? या डन? ओके हमें क्या करना है अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द पर्टिकुलर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. Now what we have to do? We have to solve this quadratic equation. लेकिन हम solve कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगी। लेकिन what do you understand by solving a quadratic equation? That is you have to find the value of x. क्या आपने कभी ये किया है स्कूल में? Have you found out how do we solve this? Yes. Yes. Okay. जिन लोगों ने किया है वो मुझे बताइए, जिन लोगों ने नहीं किया Yes, है ma'am. मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को पता है वो नेक्स्ट सम मुझे बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, when you see this equation first you have to identify is it a quadratic equation or not a quadratic equation. तो बताइए है या नहीं? Hey. है मैम। ओके ठीक है, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है सो देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो बम्फिजलमेंट इनटू दिस इक्वेशन। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या है। मतलब थर्ड टर्म जो होती है ना कांस्टेंट, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और कोई दो डिजिट्स का एडिशन होने वाला है द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है? -11। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं whose product is 30 but the addition has to be -11. Can you guys find it out? क्या हो सकता है? 30 इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा क्या? यहाँ पे कौन से दो नंबर्स आएंगे वो बताइए। किधर? -6 -5. Yes, -6 -5. Okay, if we do the multiplication of -6 and -5 we get 30, और अगर उन दोनों का एडिशन करते हैं फिर भी आंसर क्या आता है? Ma'am. -11. तो हमने क्या किया है? माइनस, यस We have to take +5 and -6. +5 -6, अगर उन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो -30 आएगा ना। वी वांट +30, हाँ या ना? आर यू गेटिंग इट गाइस? Yes. हाँ, तो आंसर क्या आएगा? -6 -5. तो हमें क्या करना है अभी? 11 जो -11x है उसको स्प्लिट करके लिखेंगे x स्क्वायर -5x -6x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. ये स्टेप समझ में आ गया? सिर्फ 11x को हमने स्प्लिट करके लिखा है -5x और -6x करके। ओके, आर यू गेटिंग इट? Yes. यस ओके, अभी क्या करना है? फर्स्ट टू टर्म्स है उनको एक ग्रुप में डालेंगे और दूसरे जो दो टर्म्स है उसको एक ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है दोनों में? X. एक्स। एक्स यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसके X. अंदर क्या बचा है? इफ वी टेक आउट एक्स, X एक्स इज रिमेनिंग राइट? यस, एंड X -5. -5. वेरी गुड, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड x इंटू -5 इज -5x. ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं नेक्स्ट ग्रुप में? 6 निकालेंगे। ओके, तो क्या बच जाएगा? X +5 +5 या -5? minus. -5 -5, बिकॉज अगर -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से विल गेट +30. ओके, इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? जो वाला ब्रैकेट कॉमन है वो सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज x -5, और जो कुछ भी बच गया है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज x एंड हियर -6. सो x -6 इज इक्वल्स टू 0. तो अब क्या करना है? मैं अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 4x इंटू 5y इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या ये हो सकता है? अगर 5y से
5y को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ सकता है कभी? आ सकता है? यस और नो? यस। तो 4x यहाँ पे 0 हो सकता है, या अगर हम ऐसे करें 4x इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये आंसर आ सकता है कभी? Yes. यस Yes, आ सकता है। ma'am. मतलब इसका मतलब क्या होगा? 5y कैन बी 0, या अगर हम तीसरा एग्जांपल ले 0 इंटू 0, इज इट पॉसिबल दैट द आंसर इज 0? Yes. 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 So what do we get the conclusion as? If 4x into 5y is equals to 0, तो तीन possibilities हो सकती है। एक तो 4x can be 0, तो आंसर 0 आएगा। नहीं तो 5y can be 0, तब आंसर 0 आएगा। और else both can be 0, तब दोनों का multiplication product क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया राइट हैंड साइड में जो लिखा है? Yes. ओके तो Ma'am. अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें, सो कैन वी से इट एज x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0? क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं? Yes. दिस पर्टिकुलर टर्म को 0 से अगर मैंने इक्वल्स टू कर दिया तो दैट वुड बी x माइनस 6 इंटू 0, 0 भी आएगा। और अगर x माइनस 6 को हम 0 लेते हैं फिर भी आंसर 0 आएगा। इसलिए मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. नो डाउट्स? No, या बहुत Excuse fast me, हो ma'am. रहा है? या Ma'am, will you please explain me because I got removed from the meeting because of network connection. ओके नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट में पहले से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके Yes, ma'am. लेट मी कंप्लीट दिस वन। ओके बाकी सबको ये समझ में आ गया हमने इधर तक क्या किया? yes, ma'am. ओके तो हम क्या करेंगे, इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो कैन वी राइट x इक्वल्स टू, अगर ये माइनस 5 राइट हैंड साइड में जाता है RHS में, सो कैन माइनस 5 बी रिटन एज प्लस 5? Yes. Yes. Yes, So the ma'am. answer would be x equals to 5। और इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 6 को? X. x equals to 6। yes पहले मैंने जब क्वेश्चन पूछा था कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। क्या हमें वैल्यूज ऑफ x मिल गई है? Yes. Yes, we have found out two values of x. Therefore, answer x is equals to 5 और x is equals to 6। क्या आपको समझ में आ गया? Yes. अगर कुछ भी डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा सॉल्व, नो इश्यूज। बस ये वाला लिख लीजिए और मुझे बताइए, तब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन। डन? कोई बाकी है लिखना? Yes, ma'am. Done. स्क्रीनशॉट ले लीजिए अदरवाइज। ओके डन डन। एनीबॉडी एल्स? Yes. ठीक है चलेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। टुडे वी हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस। ओके 20 क्वेश्चंस, बड़े बड़े टॉपर्स भी नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर टारगेट फॉर टुडे। सो अगर आप ये कर पाएंगे या सो अगर आप Ma'am, excuse me. यस यस Ma'am, can you show the last page for 2 minutes? या श्योर जस्ट अ मोमेंट। या अगर आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो आपका मैथ्स बहुत ही आई मीन अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे, उसमें कुछ भी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे अगर आज के सारे 20 सम्स आपको समझ में आए तो। Thank you, ma'am. Ma'am, you can continue. ओके थैंक यू। ठीक है लेट अस सी द सेकंड सम। जो लोग नहीं थे पहले फर्स्ट सम के लिए अभी ध्यान दो प्लीज। लेट अस टेक सेकंड सम एज x स्क्वायर माइनस 2x is equals to 48। सबसे पहले what was the first condition? We had to make the equation into the form of ax square plus bx plus c is equals to 0। क्या हमारे पास ax square है?
Yes. यस, यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे अगर कुछ नहीं है तो। ओके, क्या हमारे पास bx है? Yes. Yes. That is into the form of -2x. क्या हमारे पास c है? No. No. है, लेकिन RHS में है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको LHS में लाएंगे। सो दैट वुड बी x square minus 2x minus 48 is equals to 0. Yes? Yes. What was the second condition? Does it have a highest power as 2? Yes. Yes, Yes. ma'am. और third condition क्या थी? It has to have only one variable. क्या एक ही variable है? Yes. Yes. So shall we start solving this question now? Yes, ma'am. Okay. Question solve करना है मतलब क्या करना है? Find the value of x. Very good. We have to find the value of x. x की values चाहिए। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो कांस्टेंट होता है ना उसको ऐसे लिखेंगे, किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हैज टू बी 48, बट किसी दो नंबर -48, आई एम सॉरी -48, बट किसी दो नंबर का, उन्हीं दो नंबर का एडिशन हैज टू बी -2। तो बताइए कौन सा नंबर हो सकता है? -8 6. Just a moment. -8 and 6. Yes, it is correct. -8 plus 6 becomes -2. एक बार चेक कर लीजिए क्या ये राइट है? Yes. Does somebody have some other answer? Okay. So if this is the right answer, जो है -8 और 6, तो हम क्या करेंगे, -2 को स्प्लिट करके लिखेंगे x स्क्वायर -8x प्लस 6x -48 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, -2x को कैसे लिखा, -8 प्लस 6, जो दो फैक्टर्स हमको मिले थे। ओके, इधर तक क्लियर? Yes. Yes, ma'am. क्या करेंगे, अभी ग्रुपिंग करेंगे। तो बताइए फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है? X. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? X minus X minus 8. x minus 8। वेरी गुड। नेक्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या आएगा बाहर? 6. 6. और ब्रैकेट के अंदर X minus minus 48. वेरी गुड इज इक्वल्स टू 0। यस यस राइट। तो सबसे पहले जो कॉमन ब्रैकेट है दोनों में वो हम बाहर लिखेंगे, दैट इज x minus 8। और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? X plus 8. X plus 6. x plus 6 X plus 6. x plus 6 is equals to 0। ठीक है, what will be the next step? बताइए। X minus 8 equals to 0. is equal to 0. वेरी गुड। Or X plus 6 equals to 0. 6 is equal to 0. Yes, perfect. What is the next step? X equals to 8. Yes, x equals to 8 or X is equal to 6. X is equal to X -6. equals minus to 6. Minus 6. Very good, -6. Right, so the answer is value of x is equals to कितने values है? दो values, 8 and -6. अभी सबको समझ में आ गया है? Anybody who has not understood? Excuse me, ma'am. Yes. How there 8 came and how minus 6 came? Yes, very good question. अगर -2 को हम ऐसे लिखेंगे, -8 plus 6, is -8 plus 6 equals to -2? पहले ये बताइए। Yes, ma'am. Yes, right. तो हम क्या करेंगे, -2x को सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा है हमने। क्यों लिखा है अगले डिफरेंट फॉर्म में? बिकॉज वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स। ऐसे दो फैक्टर्स लिखने हैं। अगर हम ऐसे -8x प्लस 6x के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो हमें फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना? सो फॉर दैट यू हैव टू कंपल्सरी राइट 2x इन सच फॉर्म दैट उसका मल्टीप्लीकेशन 48 आना चाहिए लेकिन एडिशन -2x आना चाहिए। दैट इज व्हाई वी डिड ऑल दिस हियर।
Are you getting it? Yes, ma'am. This is the type of solving this question. Okay? Yes. Okay, ठीक है. लिख लिया सब लोगों ने? Yes, ma'am. Yes. Very good. 2 questions हो गए. We have to complete 20. चलो जल्दी जल्दी करो. Let us see the next question. ठीक है? Third one. अभी simple हो गए, थोड़े से tough वाले देखते हैं. The question is 4x square minus 25 is equals to 0. तो इस क्वेश्चन में तो x है ही नहीं, तो क्या करेंगे बताइए. Only x. Only x. Okay. But is this a quadratic equation? पहले ये बताइए. No. No. Okay. Somebody says no. Does somebody feel कि ये quadratic equation है? Yes. Yes. Yes, Why do you yes, ma'am. feel yes, it is a quadratic equation? No, it's not a अच्छा. carrot. Not quadratic equation. Okay. अगर मैं बोलूँ कि मुझे x नजर आ रहा है, x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x नजर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैम को ज्यादा दिख रहा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे? It is invisible. I will say like that. Hello, am I audible, guys? Yes, ma'am. Okay, I'm so sorry, network issue आ रहा था. ठीक है. Okay, तो बताइए क्या फिर अभी ये quadratic equation है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because now that I have written 0x, मतलब ये क्या 0? मतलब ये quadratic equation है because I can see highest power of 2 plus I can see x as the only variable and also in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. तो मुझे तो लग रहा है ये quadratic equation है, आपको क्यों नहीं लग रहा है? Now do you feel it is a quadratic equation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. ओके तो अब हम जस्ट बिकॉज द एडिशन इज 0, जब हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू -25 एंड एडिशन इक्वल्स टू 0, तो हम ऐसी एडिशन नहीं कर सकते जिसका एडिशन 0 हो फॉर सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू वन थिंग. विल राइट द क्वेश्चन अगेन. 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे? जस्ट बिकॉज वी हैव ओनली वन x, मतलब x के फॉर्म में एक ही टर्म है, तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को RHS में डालेंगे. ठीक है? दैट वुड बी 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 25. ओके. अब मैं क्या करूंगी? 4 को इसके नीचे डालूंगी. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 4. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. यस. नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? बताइए. Yes, ma'am. No, ma'am. नहीं समझा? ओके. श्योर जस्ट अ मिनट, फिर से लिख देती हूँ. ओके. इधर तक क्लियर था? 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इधर तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो हमने लास्ट सम में क्या किया था? जो थर्ड टर्म था उसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये -48 आया था और एडिशन उन्हीं दो नंबर का -2 आया था. दैट इज द मिडल टर्म जिसके साथ x जुड़ा होता है. ओके. लेकिन ये वाले एग्जाम्पल में हमें क्या करना होगा? एडिशन 0 लाना होगा. बट ऐसे केस में एडिशन 0 लाना बहुत टफ होता है ना? एडिशन 0 लाने वाले ऐसे हमें मिल ही नहीं सकते. अगर आपको मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है. तो एट सच टाइम्स व्हाट यू कैन डू इज, ये जो क्वेश्चन है मैं ये फिर से लिख देती हूँ. दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0. मुझे बताइए ये -25 अगर मुझे यहाँ लाना है तो क्या होगा? Would it be 4x square equals to 25? क्या ये स्टेप राइट है? Yes. यस. इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को?
No, ma'am. नो. अभी मैं क्या करती हूँ, डिवाइडिंग both the sides, that is LHS and RHS by 4. मैं क्या करती हूँ, 4 से दोनों साइड से डिवाइड करती हूँ. तो क्या होगा, 4x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 25 अपॉन 4. तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो आंसर क्या आया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 4. इधर तक क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही स्टेप मैंने लास्ट टाइम ऐसे की थी. 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 25. दैट इज व्हाई 4 विल गो इसके नीचे, 25 के नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 4 और x स्क्वायर में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा RHS में. इसलिए मैंने लिखा था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 4, डायरेक्टली लिख दिया था. अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो यू कैन डू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, नो प्रॉब्लम, सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको. Yes, ma'am. Okay. If I taking square roots on both the sides, तो आंसर क्या आएगा बताइए. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, X. x आता है. x स्क्वायर का रूट आता है x. What is the square root of 25 upon 4? 5 upon 2. 5 by 2. 5 upon 2. 5 upon 2 can be plus और minus, because minus 5 by 2 का स्क्वायर भी 25 by 4 आता है और 5 by 2 का स्क्वायर भी 25 by 4 आता है. So you have to write it as x equals to plus और minus 5 by 2. इधर तक क्लियर है. Yes, ma'am. Yes. किसी को कुछ डाउट है इसमें कि नहीं समझ में आया, प्लस माइनस कैसे आया? एनीबडी? नो. No, ma'am. ठीक है, चलिए. सो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 by 2. समझ गया? Yes. ओके, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए. Ma'am, यस. if we do this step by the last sums method, means 5 minus 5 into plus 5 is equal to minus 25. Will it be okay? लेट अस सी. बट 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट अ मोमेंट. नाउ व्हाट वी डिड हियर इन द सेकेंड वन वाज, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आपका जो फर्स्ट टर्म होता है ना x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है. तो ये जो हमने मल्टीप्लीकेशन लिखा है ना 48, दैट इज 1 इंटू माइनस 48. सो दिस क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, 4 इंटू माइनस 25. तो यहाँ पे माइनस 100 होना चाहिए. आई एम सो सॉरी, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू. ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तो यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 एंड द लास्ट टर्म, दैट इज माइनस 48. सो इसलिए वो माइनस 5 प्लस 5 नहीं आ सकता. इवन इन द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 था, देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, प्रोडक्ट 30 लिया था. दैट इज 1 इंटू 30, सो 30. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके. शैल वी डू द फोर्थ वन? Yes. ओके, ठीक है, चलेगा. अभी फोर्थ वन आपने जैसे बोला वैसे वाला करते हैं. दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x plus 1 equals to 0. Is it following all the three rules that we had seen on the first slide for being a quadratic Yes. equation? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So let us dive into solving it directly. सबसे पहले multiplication क्या होना चाहिए दोनों numbers का, जो हम factors चाहिए, that should be the first term into the constant term. So 2 into 1 is 2. ठीक है. Addition क्या होना चाहिए, the middle term, that is 3. कैन यू गाइज टेल मी ऐसे 2 नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 है लेकिन एडिशन 3 है? 2, 1. वेरी गुड. 2 एंड 2 प्लस इज 3. तो हम क्या करेंगे, 3x को स्प्लिट करके लिखेंगे 2x एंड 1x. ठीक है. सो 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस x, x मतलब 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर? यस। Yes. ओके, तो पहले हम Yes, ग्रुपिंग ma'am. करेंगे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है? 2x. 2x, वेरी 2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? X plus X 1. plus 1. x प्लस 1, वेरी गुड। नेक्स्ट में क्या कॉमन है? 1. 1. 1 कॉमन है, वेरी गुड। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1. X x plus प्लस 1. 1, यस, इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम कॉमन ब्रैकेट लिखेंगे, दैट इज x प्लस 1, ओके, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ बचा है इनटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, सो इट विल बी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x plus 1 equals to 0. Okay, what will be x plus 1 equals to 0 का next step? -1. Yes, x is equals to -1। और अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1 को वहां डालेंगे RHS में, तो that would be 2x is equals to -1। ओके, एंड ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है x के साथ, तो RHS में जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। सो x is equals to -1 अपॉन 2। Upon ओके, तो क्या हमें मिल गए हैं दो वैल्यूज x के? Yes. Yes, therefore answer value of x are x is equals to -1 and x is equals to -1/2। Is this clear? किसी को कुछ डाउट है? No, miss. No. ओके, No. लिख लीजिए Is extracted from x plus 1 to x plus 1. वन मोमेंट। ओके, कहाँ से करना है? यहाँ से x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 से ना? Yes, ma'am. ओके, सो सबसे पहले मुझे बताइए, I'll erase it और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, व्हाट्स योर नेम? द पर्सन who's asking. Ma'am, Janvi. Okay, Janvi, tell me if x plus 1 into 2x plus 1 equals to 0. So can we write x plus 1, this whole term is 0? Yes, if you write 4x into 5x equals to 0, तो क्या अगर ये 0 होता तो ये आंसर 0 आ जाता है ना? अगर आप लिखते 0 into 5x तो आंसर 0 आता ना? Yes. Yes, और अगर आप 4x into 0 लिखते तो आंसर 0 आता in this question? Yes. Yes. So shall we write if this, इन दोनों का अगर multiplication 0 आ रहा है तो can we write this term is 0 या फिर ये भी term 0 आ सकती है, इसलिए आंसर 0 आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes. So can we write x plus 1 equals to 0 और 2x plus 1 equals to 0? क्या हम लिख सकते हैं ये? Yes. Yes, okay. अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो what can be the next step? अगर हम ऐसे लिखे, let us take this 1 into the RHS. Can it be x equals to -1? Because when you change the sign, just because it has to go from LHS to RHS. जब आप LHS से RHS में किसी नंबर को exchange करते हैं तब उसकी साइन चेंज हो जाती है. That is why x is equals to -1. ये समझ में आ गया जानवी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए लेकिन इसके पास तो 2x है, सो व्हाट विल डू, पहले 1 को वहां पे डालेंगे, दैट वुड बी 2x इज इक्वल्स टू -1 और 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए x जब अकेला होगा तब 2 क्या करेगा, डिवीजन होके इसके नीचे जाएगा, दैट इज डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट LHS एंड RHS, सो इट वुड बिकम -1 अपॉन 2। क्या ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Understood. Okay. Is anybody else who has not understood? Nobody. ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So we can go to the fifth one.
Done? Yes, ma'am. Yes. Okay. ठीक है. Fifth one. Fifth question is 6 plus x is equals to x square. Tell me, is it a quadratic equation that follows all the three rules? Yes, ma'am. Yes. Yes. वो सिर्फ ax square plus bx plus c के फॉर्म में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे नहीं. पहले ये फॉर्म में लाएंगे उसको, है ना. तो मैं क्या करती हूँ, x को वहां ले जाती हूँ और 6 को वहां ले जाती हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, है ना. 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिकॉज इट वाज प्लस एक्स ओवर हियर एंड 6 विल बिकम माइनस 6, है ना. -6. यस, वेरी गुड. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. सिर्फ ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, as it is. Now, is it in the form of this term? Yes. Yes. Yes, ma'am. Now that we have to solve this equation, पहले बताइए multiplication क्या होगा और addition क्या होगा. Multiplication has to be the third term, that is -6, and addition has to be the middle term. Usually the multiplication is the first term and the third term. उनका multiplication यहाँ पे लिखना पड़ता है, but just because it is 1 over here, हम उसको -6 ही लिखेंगे and the addition would be -1. ओके, तो मुझे बताइए जल्दी से क्या हो सकता है दो डिजिट्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन -6 है. 2 minus 3. 2 into -3. 2 into -3. वेरी गुड, परफेक्ट. जिनकी एडिशन भी -1 आ रही है. सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट -x एज 2 एंड -3. सो x स्क्वायर प्लस 2x minus 3x minus 6 is equals to 0. Okay, is this okay? Yes, ma'am. Okay. Yes. Let us divide this into two groups. तो बताइए फर्स्ट ग्रुप का कॉमन क्या है? X. X. What will be in the bracket? X plus 2. Very good. Next कॉमन बाहर क्या आएगा? -3. Yes. Minus ब्रैकेट के अंदर -3. X. X Minus plus 6. x plus X because plus 2. yes, because -3 और 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो -6 आता है. I'll give you a quick trick. क्या करते हैं यूजुअली, अगर फर्स्ट जो टर्म आता है ना ये कॉमन वाला ब्रैकेट के अंदर x plus 2, तो वही यूजुअली कुछ लोग लिख देते हैं बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द सेम, नो, है ना. तो अगर Yes. आपको चेक करना है आपने सही लिखा है या नहीं, तो यूजुअली यही कॉपी कर दो, बट हैज टू बी राइट ऑल्सो. अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. तो हम क्या लिखेंगे, पहले कॉमन वाला लिखेंगे x plus 2 और दूसरी ब्रैकेट में जो बचा कुचा है x minus X minus 3. yes. Okay, now we'll write this term is equals to 0 or this term is 0. So x plus 2 equals to 0 or x minus 3 equals to 0. ठीक है, what will be the next step? 2 वहाँ पे ले जाएंगे. X is equal to -2. Yes, and यहाँ पे right hand side में X equals to 3. X is equal to plus very 3. good. So we have got two values of x, that is -2 and 3. Therefore, answer x is equals to -2 and x equals to 3. Okay, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. Okay, take the screenshots या फिर अगर आप लिख रहे हो तो जल्दी करिए. We are going to see the sixth sum now. Done. Okay. Perfect. Done. अगर आपको ये आ गया तो आपको मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे. So just be very particular when you are solving this. You have to solve this with tenacity. That means determination. ठीक है. Let us see the sixth one. Which word, ma'am? All fraction. Very good. Tenacity. That means determination. Okay, let us see the sixth one. That is 2x square
माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes, हाँ ma'am. है। ओके, Yes, ma'am. is it in the form of ax square plus bx plus c equals to 0? Yes. What is the Yes. c over here? 0. 0. 0. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें c नजर नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0, सो वी कैन हैव अनदर सोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए बिकॉज वी हैव अनदर वे टू सॉल्व दिस। अब क्या करेंगे हम, दिस माइनस 5x जो है उसको RHS में डालेंगे, सो इट बिकम्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज वी नीड x एंड नॉट x स्क्वायर, तो मैं क्या करने वाली हूँ, बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट मतलब LHS और RHS को किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, बाय डिवाइडिंग x ऑन बोथ द साइड्स। व्हाट विल बी द आंसर, 2x स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू 5x अपॉन x। ठीक है, ये एक x और x स्क्वायर में से एक x निकल जाएगा एंड ये x और ये x कॉमन कट जाएगा। ठीक है, सो द रिमेनिंग आंसर वी हैव इज 2x इज इक्वल्स टू 5। ये समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, अब हम क्या ma'am. करेंगे, Yes. ये 2 को इसके नीचे डालेंगे, therefore x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 upon 2. हाँ, वेरी गुड, इजी था ना ये वाला? Yes, ma'am. Yes. यस, ओके, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Ma'am, I am asking you one question. यस, 7 question I am asking. ओके, 7 क्वेश्चन आपको बताना है? Yes, ma'am. ओके ओके, वेरी गुड, टेल मी। Under root 2 x square यस, plus 7x plus 5 under root 2 is equal इज to इक्वल्स 0. टू 0। ओके, Zero. आपका नाम बताइए। Dhananjay, ma'am. ओके, धनंजय हैज टोल्ड अस अनदर क्वेश्चन जो टफ लग रहा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, सबसे बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. धनंजय जी को तो पता है ऑलरेडी कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए बताइए मुझे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस। व्हाट इज 5 रूट 2 इनटू रूट 2? What is root 2 ma'am. into root 2? 2. 2. Yes. So 5 into 2 is equals to 10. So the answer is 10. Multiplication क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10. Yes. और addition क्या होना चाहिए? 7. 7. तो tell me two such digits, two such numbers. 5 जिनका and multiplication 5 into 2. very 5 good. into 5 and 2. Excellent. तो हम 7x को स्प्लिट करके लिखेंगे 5 और 2 के फॉर्म में। सो रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x, या फिर 2x पहले लिखते हैं बिकॉज यहाँ पे रूट 2 है। ठीक है, देखिए मैं एडजस्टमेंट कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे विल राइट 2x पहले बिकॉज रूट 2 और 2 में रूट 2 कॉमन आ सकता है। ओके, एंड देन 5x प्लस 5 रूट ओके। नेक्स्ट स्टेप में बताइए, हम ग्रुप्स बनाएंगे, पहले 2 और बाद में 2। टेल मी व्हाट इज कॉमन? 2x. 2x। I'll tell you how. Because 2x जो है that is multiplication of root 2 into root 2 and x, है ना? तो कॉमन क्या आ सकता है, ये रूट 2 और ये x, और इसमें भी रूट 2 और एक x। Are you getting it? Yes. No. नहीं समझ में आ रहा है किसको? Who is not understanding it? Hello? अथर्व।
ओके ओके ठीक आहे, मी सांगते व्यवस्थित. ही स्टेप कळली का सगळ्यांना? हॅज एव्हरीबडी अंडरस्टूड द स्टेप? Yes, ma'am. हाँ ओके ओके. नाउ लुक हाउ आई एम राइटिंग. ओके, √2x स्क्वायर को लिखती हूँ √2x इंटू एक्स. 2x को लिखती हूँ √2 इंटू √2 इंटू एक्स, है ना. 5x को लिखती हूँ 5 इंटू एक्स जैसे है ऑलरेडी, और इसको लिखती हूँ 5 इंटू √2 जैसे है एज इट इज. ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से कॉमन क्या हमें √2x मिल सकता है? Yes, ma'am. √2 मिल सकता है ना. सो विल राइट √2x इन द कॉमन, दैट इज आउटसाइड द ब्रैकेट. और ब्रैकेट के अंदर जो बचा कुचा है x प्लस √2. ठीक है, वैसे ही सेकेंड ग्रुप में करेंगे. कॉमन तो मुझे सिर्फ 5 नजर आ रहा है, तो 5 Yes. को हम कॉमन बाहर निकालेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस √2. अभी समझ रहा है? Yes. ओके, जो कॉमन ब्रैकेट है सब उसको सबसे पहले लिखेंगे x प्लस √2, और जो दूसरा बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, दैट इज √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Yes. वो सेकंड वाले ब्रैकेट का एक बार फिर से समझाओ ना. अभी हमने क्या किया, ये वाला देखिए, ये स्टेप में क्या किया हमने, ये जो कॉमन ब्रैकेट है दोनों में वो सबसे पहले एज अ ब्रैकेट लिख दिया, और सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इसका जो कॉमन है बाहर और इसका जो कॉमन है बाहर उसको ऐड करके, यहाँ पे जो साइन होता है इसके साथ प्लस है, अगर माइनस होता तो माइनस लिख देते. ठीक है, ये वाला कॉमन लिखेंगे, फिर प्लस करके इसका वाला कॉमन लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 0. ओके. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, टेल मी. X is बताइए. equals x is equals to minus √2. Just because it is plus √2, it will go on the RHS and will become minus √2. ठीक है, और now what we'll do, we'll put the plus 5 into the RHS. That would be √2x is equals to minus 5. और √2 इसके नीचे जाएगा, x is equals to minus 5 Minus upon 5 upon √2. Yes, very good. So we have got two values of x. The first one is minus √2, and the second one is minus 5 by √2. Therefore, answer value of x is equals to minus √2 or x is equals to minus 5 by √2. Very good question, Dhananjay. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो. वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शैल वी गो? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, लेट अस सी द 8th क्वेश्चन नाउ. Ma'am, I don't see screen. Oh, is anybody else who is not able to see the screen? Ma'am, it is Yes, ma'am. My screen is also blurred. ब्लर आ रही है. ओह, आई थिंक आप आपका इंटरनेट कनेक्शन एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. फिर भी कुछ प्रॉब्लम आया तो यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप. अथर्वा भैया इज देयर टू हेल्प यू. ओके, ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3x square equals to 2x plus 8. Is this a quadratic equation? Yes. Yes. Yes, ma'am. It is a Yes. quadratic equation, but in another form. Yes. Now we'll bring it in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. तो हम लिखेंगे 3x square minus 2x minus 8 is equals to 0. Okay? 0. Yes. Just a minute.
ओके, अब हमने ये लिख दिया. अब हम क्या करेंगे? विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट फर्स्ट. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? No, the multiplication of the first term and the last term, that is minus 24. 8 3 कितनी असते? 24 and sign minus. Yes. और एडिशन उसका कितना होगा? -2 because it is the middle term. ठीक है, अभी बताइए what will be the two digits? 4 6 are 20. Minus, yeah, you're inaudible. -6 and 4. -6. Yes, very good. -6 and 4. This is the right answer. अगर -6 और 4 को ऐड करते तो आंसर भी -2 आ जाता है. So it is the right answer. ठीक है, फिर हम उसको लिखते हैं in the split form of -2x. So that would be 3x square minus 6x plus 4x minus 8 is equals to 0. Okay. अभी इसके ग्रुप्स बनाते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स एंड द लास्ट टू टर्म्स. ठीक है, सो व्हाट विल बी द कॉमन इन द फर्स्ट ग्रुप? X. 3x. 3x विल बी कॉमन. ब्रैकेट के अंदर X minus -2. x. 2 -2. Sorry, Because- -2. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम. फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? 4. 4 इज कॉमन. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x -2. X -2. Now that you can observe, even this bracket is similar to this bracket. ठीक है. Now the common bracket will write it first. x -2 bracket के अंदर multiplied by जो बचा कुचा है, that is 3x plus 4 is equals to 0. Now this term is equals to 0 or this term is equals to 0. So x -2 is equals to 0 or 3x plus 4 is equals to 0. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहाँ पे? बताइए. X X equals is to equal 2. to +2. यस 2. और राइट हैंड साइड में क्या होगा? सबसे पहले 4 को वहां डालना पड़ेगा बिकॉज x has 3 as the coefficient with it. So 3x is equals to minus 4. -4. Yes, and X equals to X is X equal is equal to -4 upon 3. 4 upon 3. yes, very good. So we have got the two values of x. Therefore, final answer x is equals to 2 or x is equals to -4/3. क्या सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Yes. Okay, screenshot if you want. Then we'll go to the next one. Ma'am, please Done? wait. Yeah, I'll wait. क्या आपके यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं है? Yes, मेरे यहाँ और जा भी रही है. Ma'am. हाँ, आ रही और जा रही है इधर. सैटरडे को यही प्रॉब्लम होता है. हमारा भी यहाँ पे इंटरनेट सब कुछ बंद हो चुका है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पावर इज नॉट देयर. ओ गॉड, आई होप ये सेशन के पहले भी आ जाए, अदरवाइज चार्जिंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है लैपटॉप की. ओ गॉड. अगर Light came. सॉरी, Ma'am, light came here. अच्छा, हमारे यहाँ तो नहीं आई यार. ठीक है, अगर मीटिंग खत्म हो जाए बीच में तो समझ लीजिए कि the charging has got discharged and the laptop is not working. So I hope you guys understand. Okay, ठीक है. Shall we proceed to the next one? कोई लिख रहा था ना? No, ma'am, finished. Okay, ठीक है, चलेगा. Let us see the 9th question. 9th question is 4x square plus 15 equals to 16x. Is it a quadratic equation? Yes, ma'am. ओके, बस राइट फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले फॉर्म में लिख लेते हैं. दैट इज 4x स्क्वायर
प्लस अगर ये 16x यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? माइनस Minus 16. Yes, so that would be minus 16x plus 15 is equals to 0. 15 तो यहीं पे था इसलिए प्लस 15. ठीक है, तो बताइए मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या होगा और सम क्या होगा? multiplication will be 60. 60. Very good. And the addition would be 16. minus 16. ठीक है, बताइए which would be two numbers जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 हो, एडिशन minus 16 हो? Sorry? -6 and -10. Minus -6 and -10. Very good. -6 and -10. Perfect. तो क्या करते हैं, -16 को स्प्लिट करके लिखेंगे. दैट वुड बी 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. अगर हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालना चाहे तो 6x और 15 में कॉमन है क्या कुछ? No. है कॉमन. 3 कॉमन है ना डूड? 3 के टेबल में आते हैं ना दोनों. बिकॉज मैं क्या करने वाली थी, 6x को यहाँ लिखने वाली थी और -10 को यहाँ लिखने वाली थी. बट नाउ दैट आई सी कॉमन है तो उसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. लेट अस कंटिन्यू. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन 4x स्क्वायर एंड -10x? बताइए. 2x. वेरी गुड. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? X minus 5. 2x. 4x स्क्वायर है ना, सो 2x माइनस 5. -5. यस. नेक्स्ट में कॉमन क्या होगा? 3. -3 एंड x -5. यहाँ पे 2x होना चाहिए, सॉरी. 2x -5 is equals to 0 because -3 into -5 is +15. ठीक है, कॉमन वाले ब्रैकेट्स पहले लिखेंगे. 2x -5 इंटू दूसरा ब्रैकेट 2x एंड दिस इज -3 is equals to 0. ठीक है, फिर this bracket equals to 0 and this bracket is equals to 0. So 2x minus 5 is equals to 0 or 2x minus 3 is equals to 0. Yes. पहले क्या लिखेंगे, कांस्टेंट को RHS में डालेंगे. That would be 2x is equals to 5 and yes, next step would be X is equal to 5 upon 2. Very good. ठीक है, राइट हैंड साइड में अब क्या करेंगे? 2x is equals to 3. X is equal to 3. Yes. And X is equal to 3 upon 2. 3 upon 2. Perfect. Now that you guys have got the two values of x, let us write. Therefore, answer. Value of x is equals to 5 by 2 or x is equals to 3 by 2. Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes. The ones who are writing, please write quickly and screenshot वाले जल्दी जल्दी screenshot ले लो. Or before and Sorry? you have to give the आपकी आवाज नहीं आ रही है. I guess अथर्व बात कर रहे हैं क्या? yes हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा प्लीज. before लास्ट स्लाइड दिखाऊं मैं आपको. अथर्व, do you want me to show you the last slide? What do you want? I have to ask a question. आपकी आवाज नहीं आ रही है अथर्व. I'm so sorry. Can you type on the WhatsApp group? I'll check it from there. Okay, are you guys done with this question? Yes. Yes. Okay, let us see the second 10th one. ठीक है. 10th question. थोड़ा सा trick question है, but I'm sure you guys will make it. So x into 2x plus 5 is equals to 25. क्या ये quadratic equation है? We have to give the sign of their common equation.
Yes, we have to give. अथर्व, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, it is right. We have to give the sign of therefore before an equation. मैंने अभी नहीं लिखा है पर yes, we should write. हाँ, तो बताइए, this is a quadratic equation. Yes. Yes, just it is not in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. हमें उसको ये फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं and then let us make it in the form of this way. So it would be 2x square plus 2x x square into 5 plus is 5x is equals to 25. 25 को यहाँ पे ले आते हैं LHS में, so यहाँ पे therefore has to be there, right? मैं बोर्ड्स के पेपर नहीं लिखती तो मुझे याद नहीं था. You have to give therefore sign, okay guys? Otherwise right. Therefore 2x square plus 5x minus 25 और equal to sign के नीचे equal to आना चाहिए, equals to 0. ठीक है? Is this a quadratic equation into this form now? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, perfect. Now tell me what is the multiplication product and the sum. minus 25. Minus 50 because minus 25 into 2. Don't forget this, please. ठीक है? और addition should be plus 5. तो बताइए ऐसे कौन से दो नंबर्स है? -5 या -5 and yes, minus 5 plus 10. Perfect. Minus 5 plus 10 is 5. ठीक है, 5x को स्प्लिट करके लिखेंगे 2x square plus 10x minus 5x minus 25 equals to 0. ठीक है? Tell me what is common in the first two terms, first group. 2x. Yes. And bracket में आएगा x plus बताइए 5. 5. Perfect. Next में क्या कॉमन आएगा? 5. minus 5 और फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा x plus 5 Plus 5. X plus 5. 0. Yes, right. Therefore पहले जो कॉमन है वो ब्रैकेट पहले लिखेंगे x plus 5 और फिर दूसरी ब्रैकेट में जो बचा कुचा है वो लिखेंगे that is 2x minus 5 equals to 0. ठीक है? Now we'll write x plus 5 equals to 0 or 2x minus 5 equals to 0. What will be the next step? Tell me. X 2x is equal to 5. X is x equals to minus 5. यहाँ पे जाएगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, पहले 5 को RHS में डालते हैं, that is 2x equals to 5 and x is equal to 5 upon 5 upon 2. Yes, so we have got the two answers of x, that is value of x is equals to minus 5 or x is equals to 5 by 2. Did you guys get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब problem ये है कि the charging of my laptop is almost 5%. So is it okay if I give you the questions for homework? बचे 10 questions है. And will you guys solve it for homework and let us discuss it tomorrow? Is it okay? Yes, ma'am. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस में तो हम कल ही देखेंगे एंड आई सेंड इट टू यू ऑन व्हाट्सएप. उसका फोटो भेजती हूँ मैं आपको और आप सॉल्व करने को ट्राई कीजिए, 100% दीजिए आप अपना और फिर हम कल डिस्कस करते हैं. ओके? मैम मुझे 7 नंबर क्वेश्चन दिखाओ ना. हाँ हाँ, श्योर श्योर. So sorry, I have to end it here right now, but we'll continue it tomorrow. No problem. Okay? Ma'am, अगर yeah, Okay. does somebody want to say something? Ma'am, today's hard work. Sorry, please repeat. Ma'am, today's hard work.
Yes, today's hard words, please. जल्दी से बताइए. नहीं तो आधे ही. Just a can I? moment. मैम एक मिनट नाम बताइए आपने. Rachel. खुशबू Rachel. रिदिशा खुशबू रिदिशा. मैम पूर्वा खुशबू. मैम पूर्वा थोड़ा हैंड राइटिंग बैक कर लीजिए पूर्वा. हाँ. Sanika. निहारिका. पूर्वा लिख दिया. जानवी. आदिति Sanika. सारिका. ओके. Sanika. सानिका. ओके. आगे. श्रावणी सेजल. सेजल. ओके. और कोई. सॉरी. तन्वी सावकार. ओके. तन्वी ए नहीं है आज शायद. ओके, नो प्रॉब्लम. मैम और कोई. सृजा. ओके. और कोई. मैम सॉरी. स्वरा. ओके. स्वरा. आगे कोई. उन्नति उन्नति. ओके. और बताइए. पूर्वा हो गई यहाँ पे. एनीबडी एल्स. नोबडी. अब क्या आप, मैंने इसने जो नाम लिखे हैं, कैन यू गाइस सेंड मी द नेम्स ऑन व्हाट्सएप ऑन माय पर्सनल कांटेक्ट. ओके. तो मैं देख भी सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, चीटिंग होता है बहुत बार. यू गाइस जस्ट रिपीट सम ऑफ द नेम्स. तो आप मुझे जब मुझे पर्सनल पे भेजेंगे तब मैं चेक करूंगी, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो आपको बता दूंगी. एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू लिटरली नो द वर्ड्स और नॉट. ठीक है. तो मैं ये फोटो ले लेती हूँ, और इसमें से जो मुझे भेजेंगे उनका ही नाम मैं सिलेक्ट करके वो लिस्ट में डालूंगी. ठीक है. Yes, thank you so much for today's session. I hope you guys liked it. कल हम continue करेंगे. Don't forget to solve the homework sums, and I'll meet you tomorrow. Okay? Thank you so much. bye ma'am thank you ma'am Bye, ma'am. Thank you. ओके मैम bye ma'am Bye. I understand all sums. Oh, that's great. Very good.